لا الہ الا اللہ میری زبان نے ساتھ نہیں دیا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ مجھے کینٹین بنا کے دے دے. مریم صاحبہ میرے پر 1 روپیہ بھی حرام ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ آپ نے جو ڈھابا لگایا ہوا یہ کس کی اجازت سے لگایا؟ اگر یہ ڈھابا یہاں سے یہ چیزیں نہ اٹھائیں تو آپ کی یہ چیزیں توڑ دی جائیں گی. تو وہ خانچہ فروش جو کندھے کے اوپر ڈنڈا رکھ کے غبارے بیچ رہے ہیں وہ پیرا کے دائرہ اختیار میں کیسے آتا ہے؟ 20,000 ریڑھی اٹھاتے ہیں اور اس کے بدلے 2,000 ریڑھی کو بازار میں سجواتے ہیں, تو بقایا 18,000 خاندان کا جواب کون دے گا؟ ایسا تو نہیں کیا کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. ویسے تو ہم لوگ 5 لاکھ ہمارے ہیرو کی بیٹی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا پیار محبت کر سکتے ہیں. بات تو یہی غلط ثابت ہو جاتی ہے, جو اس طرح کی بات کرے گا اس کا ہیرو جو ہے وہ کبڈی کا پلیئر تو ہو سکتا ہے, حبیب جان بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا پنجاب میں اگر کوئی ورکر ہے تو وہ ہونا جرم ہے, اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر ہے تو وہ ہونا جرم ہے. اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے آپ لوگ. کیوں؟ مسلم لیگ نون کا خریدا ہوا پنجاب. میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہیں میری راہیں, میرے ارد گرد آنسو, میرے آس پاس آہیں. ویسے تو معاشرے میں خواتین کا زندہ رہنا خاص کر کے پاکستان میں نہایت ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, جہاں پہ قتل کی وارداتیں اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے بیڈ ایونٹس جن کو سننے کے بعد روح کانپ آ جاتی ہے وہ تو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن وہ اشرافیہ, وہ بڑے لوگ جن کے نام سے پاکستان سجتا دھجتا ہے. حبیب جان وطن عزیز پاکستان کا کتنا بڑا نام ہے, اور ان کی نظمیں اور ان کی ایک جلال سے ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی شاعری جو ہے وہ آج کی نسل بھی گنگناتی ہے. اور کوئی وزراء اعظم ہوں, کوئی بڑے بڑے طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کیوں نہ ہوں, وہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر ان کے اشعار پڑھ کے اپنی مجلس کو گرمایا کرتے ہیں. ان کی بیٹی, ان کا پورا خاندان, آج تو ان کی پوتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ در حقیقت واقعہ ہوا کیا, اور اچانک ہی پیرا فورس کو کیسی ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے ایک صفائی نامہ کہہ لیا, یا آپ اسے کہیں وضاحت جو ہے وہ انہوں نے پیش ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر کر دی اور اس کو پھر پبلش بھی کروایا. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میڈیا ہائر کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں بلنٹ لائن نیوز اور میرا نام یاسر شمعون خان ہے. بہت ہی اہم مدعا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بات شروع کرتے ہیں طاہرہ جالب سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طاہرہ, یہ اب سین بالکل بدلتا چلا جا رہا ہے. اب لگتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ آپ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اور آپ کی جتنی بھی کی جانے والی باتیں ہیں اب وہ اس کا جواب دینے کے موڈ میں آ گیا ہے. جی جی بالکل. اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پیرا کا اہلکار ہی نہیں تھا اور اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں تھا. یہ کس طرح کا ثبوت چاہتے ہیں؟ کوئی قتل تھوڑا ہوا تھا, یہ کوئی آپ کی ذاتی لڑائی تھی یا پھر یہ اجتماعی لڑائی ہے؟ سر میری بات سنیے, سب سے پہلے تو سارے جتنے بھی ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے واقعات ہیں ٹیرر فورس کی طرف سے, آپ دیکھ لیں جو دیکھنے میں بھی آتے ہیں, سننے میں بھی آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مجھ سے رشوت لینے آتا ہے یا کوئی بھتہ لینے کے لیے آتا ہے, کیا میں اس کی ویڈیو بناؤں گی تو وہ مجھے ویڈیو بنانے دے گا؟ ایک سوال ہے, مجھے بنانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں بنانے دے گا. ٹھیک ہے نا, دل کی بات نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ آیا ہے میرے پاس کے پہلے انہوں نے آ کے ہمیں دھمکیاں لگائی ہیں. اچھا 3 سے 4 گھنٹے میں وہاں بہت مشکل سے کھڑی ہوئی ہوں. مجھے فون آتا ہے, یہ ساری اسٹوری تو چل چکی ہے, ہو چکی ہے. میں فون سننے کے لیے چلی جاتی ہوں گاڑی میں, میری بھتیجی بیٹھی ہوتی ہے ڈھابے کے اوپر. ٹھیک ہے, اب 7 سے 8 لوگ آتے ہیں, اندھیرا جب ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جو ڈھابا لگایا ہوا یہ کس کی اجازت سے لگایا, یہ کیوں لگایا آپ نے؟ آپ اگر یہ ڈھابا یہاں سے یہ چیزیں نہ اٹھائیں, نہیں اٹھائی تو آپ کی یہ چیزیں توڑ دی جائیں گی اور یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن طاہرہ یہاں پہ ایک سوال لے لیجیے. جی جی بولیے. جی جی. جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں یا میونسپل کارپوریشن کے نمائندے ہیں یا پیرا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اب تمام تر ادارے پابندی ہو چکے ہیں. اچھا, ان کا کوئی نہ کوئی نظام ہے. سفید پارچہ جات میں تو گنڈے آتے ہیں,
बदमाश आते हैं, आपने उनकी शक्ल सूरत को, उनकी वज़ाकत को देखते हुए क्या महसूस किया, ये कौन लोग हैं? देखिए बड़े ऊंचे लंबे थे और बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और मेरी तरफ देखते जा रही हैं वो बड़े गुस्से से, और जब वापस आए फिर भी वो मेरी तरफ गुस्से से देखते जा रही हैं, और उन्होंने मेरी बाकायदा वीडियो बनाई है, तस्वीरें बनाई हैं। मैं उनको बता रही हूँ कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, मुझे प्लीज़ तंग ना करें, मुझे आप सपोर्ट करें, और मुझे प्लीज़, मैं खड़े होने से पहले भी मैंने उनको कहा कि LDA वाले मुझे तंग ना करें। बगैर वर्दी के बड़े अच्छे ठीक ठाक आई हैं और बड़े ऊंचे लंबे आके उन्होंने बात की है कि जी आप यहाँ से सामान जो है ना उठा लें, अपना ये जो लगाया हुआ आपने ढाबा 4 से 5 फुट का, ओके, ठीक है, 4 से 5 फुट का वो जगह मैंने अपने नाम तो नहीं कर देनी थी, वो जगह उठा के मैंने अपने 4 से 5 फुट का तो जिंदा इंसान इतना सा, हाँ, 3 फुट का कह रहे हैं, हाँ जी, अच्छा, इतना सा। उसके ऊपर सारी चीजें रखी हुई थी। 3 से 4 घंटे वहां पे बैठना मेरा इन लोगों ने दूभर कर दिया। फिर वो बाद में मोटर बाइक पे आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, और वो तीसरी तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ये हरासा कर रही हैं, और ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं। ये कोई बात है करने वाली? जब शाम अंधेरा होता है, अंधेरा जब होता है तो अजान होती है, मुझे फ़ोन आता है, मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाती हूँ फ़ोन करने के लिए। उसके बाद मेरी भतीजी जो है वो ढाबे पे बैठी होती हैं, 7 से 8 बार जो है ना वो इनको आके हमें इनको मिलने के लिए एक बंदा खड़ा होता, हमसे बात कर रहा होता कि बाजी आपने ढाबा लगा लिया है या आपने क्या किया है। मैंने कहा हम लोग किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, मजदूर लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना, हाँ। चलो हम लोग अपना घर का किचन चलाने के लिए कर रहे हैं ना, चलो हमारा ये बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा काम, तो हम मजीद इसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। अच्छा, इनकी पोती हबीब जालिब साहब की हमारे साथ मौजूद है, जिनसे मेन कन्वर्सेशन हुई है, इनसे भी पूरा अहवाल जानने की कोशिश करते हैं और फिर ताहिरा के आगे करप्ट सवाल रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पे हेड कर रही हैं इस एरिए में, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अंदरूनी खाना कहानी है क्या, ये भी निकालने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा हसन खान है। अच्छा, सारा हसन खान, ये दर हकीकत वाक़या क्या बात? जो बात आपको ताहिरा ने बताई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बात ऐसी ही हुई है। मेरे पास पहले MCL के 2 एहलकार आते हैं, वो बाइक पर थे, वो मुझसे बात करते हैं। मेरे साथ जो बंदा बैठा है उसको बुलाते हैं डायरेक्ट, पहले मुझसे भी बात नहीं की उन्होंने। मेरे पास जो बंदा बैठा था, जो वैसे ही हमसे मिलने के लिए आया था, उसको बुलाया है। वो अबाउट टू उसका गिरेबान पकड़ने के थे, तो मैंने उसमें इंटरवीन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं ना। जो बंदा आपसे बात करना चाह रहा था जी, उसका गिरेबान पकड़ना? नहीं, मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था जो मुझसे पहले ही बात कर रहा था, वो मेरे जानने वाला था। उन्होंने उसको बुलाया है कि जो उनकी एक मखसूस जुबान होती है, अदरार, बड़े बारोक तरीके से वो गया बेचारा, वो पहले ही मासूम डरा सा मैं बैठा हुआ था। तो मैंने जब देखा है उनको कि उनके जो है एक्सप्रेशंस वो बहुत रूड है, लाउड है, तो मैंने उसी वक्त जो है ना उनको कहा कि 1 मिनट आप रुक जाए, आपने इससे क्या पूछना है, इसने यहाँ पे ढाबा क्यों लगाया। मैं कहा जी मैं ऑनर हूँ, आप मुझसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि बीबी बात सुने, ये जो है ना आप के पास परमिशन है। मैं कहा हमारा आज पहला दिन है, तो जो कोई भी परमिशन होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको कर लेंगे, उसको पूरा करेंगे। हाँ जी, हम उसको पूरा करेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और अपना जो है वो कानूनी नुक्ता नज़र से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उनको पूरा करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं जी आप चले जाएँ फिर TMO के पास, जो MOR है इधर, आप उनके पास चले जाएँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं का नाम क्या? उन्होंने कहा जवादुल हसन गोल्डन। मैं कहा जी ठीक है, आपके पास? उन्होंने हाँ नहीं हम रब्ता नहीं करते, और देखें हम रब्ता नंबर नहीं देखे, और सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि वो रब्ता नंबर उन्होंने हमें नहीं दिया, लेकिन खुद जवादुल हसन गोंदल का फ़ोन आता है। और वो कैसे आता है कि हम वापस आते हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, हम वापस आते हैं, ताहिरा एक लाइव करती हैं कि मेरे लिए ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि इस तरह से हमारे साथ ये जितना भी सामान आपको नज़र आ रहा है बाहर भी पड़ा हुआ है, वो सब कुछ क्रेडिट पर था। तो मैं तो परेशान हो गई हूँ कि आवाम की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, लेकिन जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हमें ये हुआ है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इंक्रोचमेंट पे 0 टॉलरेंस है। अगर इंक्रोचमेंट पे 0 टॉलरेंस है तो आप मुझे ये बताएं। वो तो ये भी कहती हैं कि खातून जो है, वो मैं उसके ऊपर भी लाइन है, रोजाना खवातीन के साथ इसमें जरी होती है, रोजाना खवातीन को कत्ल किया जाता है, उनकी तो छोड़ ही देना। मैं आपको बात कर रही हूँ, देखें इस वक्त हमारे सूबे की सरबराह वही है, आप माने ना माने वो बिल्कुल है। हमें इस वक्त वो जो है वो हमारे सूबे की सरबराह है, और हम
उनसे ही ये सवाल उनके आगे रखते हैं। आप कहती है जीरो इंक्रोचमेंट हमें चाहिए, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट के ऊपर टॉलरेंस नहीं है। तो वो खांचा फरोश जो कंधे के ऊपर डंडा रख के गुब्बारे बेच रहा है या एक स्टैंड पकड़ के क्लिप बेच रहा है, वो पीरा के जो है दायरा इख्तियार में कैसे आता है? वो तो कोई जगह नहीं घेर रहा। उसके गुब्बारे छीन कर जो बैग में उसने वो गुब्बारे अभी फुलाने वाले उसको रखा हुआ है, वो बैग खींच के ले गए। 3,000 रुपए उस बच्चे से मांगा, वो फैसलाबाद का रिहायशी है, वो 3,000 रुपए उसको मैंने खुद दिया है कि जाओ बेटा जाके अपना सामान निकलवा लो, ठीक है। वो 3,000 रुपए मेरी जरूरत के थे, वो 3,000 रुपए मैंने अपनी जरूरत से ऊपर उसको दे दिए। आप बताएं वो इंक्रोचमेंट के जुमरे में, एक मेरी ये बात को बता दें, वो जुमरे में कैसे आते हैं? हमने जब अपनी एप्लीकेशंस दी थी कि हमें इजाज़त दी जाए, और हमें एडीसी और डीसीओ बता रहे हैं कि वो तो जो रेडियो वाला, जो मॉडल रेडी वाला सिस्टम था ना, वो तो 2,000 रेडियाँ थे, वो हमने पूरी कर दी। आप 20,000 सपोज 20,000 रेडी उठाते हैं और उसके बदले 2,000 रेडी को बाजार में सजवाते हैं, तो बकाया 18,000 खानदान का जवाब कौन देगा? असल उनकी किफालत कौन करेगा? असल मुद्दा ये है कि जो लोगों के साथ जुल्म और सितम हो रहे हैं, आप उसके ऊपर बात करें। अगर हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे आपने एक बात की कि ये जो खांचा फरोश होते हैं और ये सारी चीजें उठा के ये कैसे उनकी डोमेन में आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन डोमेन जो भी इदारे बनते हैं, कोई भी इदारा बनता है, उनकी डोमेन और उनका मैंडेट जो है ना, मौजूदा हुकूमत उस कानून साजी के अंदर डिसाइड करती है जी, ठीक है ना जी। ये आपका मेरा मसला है ही। दर हकीकत मसला ये है कि अगर ये डोमेन भी बनी है और ये अगर उनका मैंडेट भी है कि इन लोगों को उठाया जाए, तो ये किस तरह का मैंडेट है जो इंसानी हकूक की तमाम बिल्कुल यही सवाल है, यही सवाल है कि वो अगर आपकी डोमेन में आते भी हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि रात पीरा फोर्सेस की जानिब से जो है एक वजाहती बयान आया है, कभी किसी के बारे में पीरा ने वजाहती बयान नहीं दिया। भाई आपकी फैमिली है ना, जाहिर है उनको डर था इस चीज का। बिल्कुल फैमिली, मैं इस चीज को एडमिट आप कोर्ट करती में हूं। ना चले जाएं, आपको पिटीशन ना दायर कर दें, आपके ऊपर कोई यानी कि कोई बड़ा इदारा एक्शन ना ले ले, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम उनसे सवाल करते हैं, कोई बात, कोई किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो क्या कोई इदारा इस पे हक बजानिब है कि वो आपको सरेआम कहे और अपने जो लेटर हेड के ऊपर कहे कि ये झूठ पर मबनी है? आप हमें झूठा कैसे कह सकते हैं? जबकि सर लेट मी कंप्लीट नाउ, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे पीरा की करतूतें जो हैं वो सामने पड़ी है। क्या आप उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते? अगर आपको अपने पैरामीटर सेट कर रहे हैं, हम तो ये डिमांड करते हैं पीरा फोर्स का जो इजाफी बोझ गरीबों के ऊपर, आवाम के ऊपर डाला गया है पंजाब की, इसको बंद किया जाए। और अगर आप बंद नहीं करते, बीबी को इतना शौक है अपनी फोर्स को जमाने का, बना के रखने का, तो उनके SOPs वाज़िया किए जाए, उनको बताया जाए उनका ज़ाब्ता अखलाक क्या होना चाहिए कि वो लोगों के गिरेबान और दाढ़ियाँ और कॉलर घसीटते हैं। ये कहाँ की शराफत है? ये कौन सा अफसर जो है वो करता है? आप हमारी हिफाजत के लिए, आप हमारे टैक्स पर पल रहे हैं, आप हमारे खादिम हैं, ना कि हमारे कातिल बने। हमारा मुद्दा ये है, आप निज़ाम वो वाज़िया करें। निज़ाम को हम बदल नहीं सकते, ना हम निज़ाम बदलने की बात कर रहे हैं, ना हमको इनकलाब बर्पा करने की बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि SOPs को वाज़िया किया जाए, आपका दायरा कार क्या है, दायरा इख्तियार क्या है, उसको बेहतर तो बनाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। नाज़रीन ये बड़ा ही बहुत ही अहम सवाल है कि जो SOPs हैं उसको वजाहत उसकी की जाए, उसको वज़ा किया जाए। बिल्कुल, वो खवातीन से कैसे बात करेंगे, वो बाजार में मौजूद लोगों के साथ किस तरह का सलूक करेंगे, वो आया अगर वो किसी से भत्ता मांगने के मुर्तकिब होते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी। और देखिए उन्होंने कहा कि आस्क पीरा पे आप सारी जो है वो कार्रवाई, जो भी आपके पास सबूत है वो डालें। मुझे बताएं, एक ऑफिसर वर्दी में अगर आता है तो क्या मैं खड़ी होके पहले उसकी वीडियो बनाऊं? नहीं, क्या वो मुझे वीडियो बनाने देगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है सफाई इसलिए पेश की है, उसकी 2 वजूहात है। तो आपका खानदान बड़ा है और कोई हुकूमती हल्का उसके ऊपर एक्शन न ले ले। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ भी इसमें इस स्टेटस में जाहिर की है कि आपने बहुत मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में पीरा का नाम लिया। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीरा का जितना भी जिक्र हुआ है जिस इंटरव्यू में, वो एक सिंबॉलिकल फोर्स होने का नाम है, यानी कि एक सिंबॉलिकली बताया गया। उसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसमें
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने जितने भी ज़िले इदारे हैं उन सब का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि वो बावर्दी एक फोर्स है और उसके कारनामे और कारस्तानियाँ दिन ब दिन नज़र आती हैं, शायद मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसलिए से नहीं, सिंबॉलिकली नहीं, मैं जितनी भी बातें की हैं वो हमने बहुत जिम्मेदाराना तौर पे बात की। हमें पता है कि एक वर्दी है, तो लेकिन फिर ये बात तो तय हो गई ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका डाबा खत्म करने की वजह नहीं है, आप एक मुकम्मल जंग लड़ रही हैं अवाम के लिए। आप कहें ना इसे ब्लड कहें। बिल्कुल, ये अवाम का केस है, ये उस 98% अवाम का केस है जिनका अवाम का केस है, 98% अवाम का केस है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मोहतरमा मरियम नवाज की हुकूमत है, और इस वक्त 36 का आंकड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चल रहा है, और मोहतरमा तहरा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव भी है। आप क्या कहेंगे इसके? जी बिल्कुल, मैं हूँ पीपल्स पार्टी के नाइट सदर। तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं, हल्फन से फीडबैक तो नहीं, हल्फन कहरा ने कान में कोई हल्फन किसी बात कर दी, सुन लीजिए, हल्फन मैंने कल भी, सख्त होते हैं पीपल पार्टी। सर जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर बात कर रही हूँ बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ, हल्फन बात कर रही हूँ। वालिद गिरामी का भी पीपल्स पार्टी से बहुत ताल्लुक रहा है। ताल्लुक इस तरह रहा है, भुट्टो साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड दोस्ती थी उनकी, ठीक है, ज्यादा दोस्ती जी। और जालिब साहब के बहुत सारे प्रोग्राम जो मैंने भी अटेंड किए हैं। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा उनकी बहन बनी हुई थी जालिब साहब की, और बीबी बेनज़ीर साहबा बेटी, जालिब साहब उनको बेटी कहते थे, और उनके बहुत सारे प्रोग्राम मैं खुद उन प्रोग्राम में थी। अच्छा, ये है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूँ कि मैंने 10 दिन गवर्नर के साथ हमारी मीटिंग रही है, ठीक है, मैंने, मेरी ज़ुबान ने साथ नहीं दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी ज़ुबान ने साथ नहीं दिया कि मैं उनको ये कहूँ कि मुझे कैंटीन बना के दे दें, मुझे कोई ढाबा बना के दे दें। मैं देखिए, मैंने 6 साल करीम चलाई है, खामोशी से चलाई है, ओबर भी चलाई है, जियांगो भी चलाई है, और मैंने फिर लड़कियों को ड्राइविंग भी सिखाई है। 2 साल मैंने पीसीओ के ऊपर जॉब भी की है। तब ये लोग कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं आके पूछा कि आप क्या कर रही हैं? इतने बड़े शायर की बेटी पीसीओ भी काम कर रही है, इतने बड़े शायर की बेटी ड्राइविंग सिखा रही है, 200 रुपए के ऊपर 10 दिन एक लड़की को। मैं 200 रुपए लिया करती थी और पैदल जाती थी और पैदल आती थी, और मैं बड़े ही भुट्टो के एक इशारे के ऊपर ज्यादा अपने ऊपर पेट्रोल फेंक के अपने आप को आग लगा दिया करता है। ज्याले हैं आप उनके, और इधर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। ऐसी कोई भी मेरे जहन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। मैंने घर की रोटी कमानी, मैंने घर की अपनी इज्जत से। ऐसा तो नहीं किया कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है? बिल्कुल भी नहीं, बता दें। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बात क्या कर रही हूँ, बार बार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें तो मैंने जब ये भी बताते हैं, हमारे ज़राया तो हमें ये भी बताते हैं, देखिए जब एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम चल रहा होता है तो फिर उसमें हर जगह को छेड़ते हैं, चेक करते हैं, तो पता चल जाए। इसमें माइंड करने की बात नहीं, मैं माइंड नहीं कर रही। गुजारिश ये है कि हमें हमारे रिसोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि आपको बाकायदा तौर के ऊपर ऑफर्स दें कि आप इतने पैसे दे दें तो आपका कारोबार लीगली तौर के ऊपर यहाँ सेट कर दिया जाए। देखिए, ये कॉल जो है वो ताहिरा जालिब साहबा को आई थी कि हम देखते हैं कि आप, वैसे तो हम लोग 5 लाख रुपए लेते हैं, सरकारी तौर पे 5 लाख रुपए देते हैं। वैसे हम देखेंगे कि वैसे हम देखेंगे कि आपसे आप हमारी ही बेटी हो, तो हम देखते हैं कि आपके साथ हम क्या प्यार मोहब्बत कर सकते हैं। पहली बात तो यही गलत साबित हो जाती है, जो इस तरह की बात करेगा उसका हीरो जो है वो, मेरे कहने का मतलब कि कबड्डी का प्लेयर तो हो सकता है, हबीब जालिब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो कौन है, कौन जिसने आपको कॉल की थी, बताएं उसका। यहाँ पर आपके ऊपर सियासत के इल्जाम लग रहे हैं, यहाँ पर आपके ऊपर सफाइयाँ पेश करने के लिए इदारे आ गए हैं, एक कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि हबीब जालिब साहब की बेटी और उनकी पोती के साथ ये रवैया जो है वो कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए लड़ रही हूँ, तो वो भी गरीब बंदा जो मुझे मिला, चश्मे वाला, और उन्होंने मुझे, जमाल साहब उसका नाम है, जमाल, उन्होंने मुझे आके पहचाना, उन्होंने मुझे आके कहा कि आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे काम कर लें, यहाँ पे आपको कोई नहीं छेड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है। लोगों से हम 5 लाख रुपए लेते हैं जो हुकूमत को पे करना होता है। ये वो आप जिस तरह से भी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, वो रिकॉर्डिंग निकलवाना चाहें, वो निकलवा सकते हैं। जो उन्होंने मेरे साथ बात की है कि लोगों से हम 5, मतलब कि हमारा सोर्स हमें सही बता रहा था
कि बिल्कुल ये हुआ है, जी ठीक है ना जी, ऐसे नहीं आप तड़प रहे इतना। जी। 5 लाख रुपया हम लोगों से लेते हैं जो हम हुकूमत को पे करते हैं। तो आपका देख लेंगे कि आपसे कितना लेना है, हाँ, हम आपको बता देते हैं कि आपको हमने, हम बता देते हैं। हाँ, आप हमारी पीर बहन है, आप हमारी लीडर की बेटी हैं। सुने लैंग्वेज, आप हमारी पीर बहन है, लैंग्वेज सुने हैं, चर्च बेचने वाले, आप सुने ये उनकी जुबान हुआ करती है, आप सुने ये मनशियात फरोशों की जुबान होती है, पेटी भरा तुसी पीर भाई हो पैर हो जाए कट्ठे ही कड़ा है, ये इस तरह की, मैं क्राइम रिपोर्टर, मैंने सब कुछ देखा हुआ, ये सारी चीज़ें जानता हूँ। अब जो चीज़ मुझे समझ आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि ताहिरा और उनकी फैमिली हबीब जालिब साहब की नस्ल में से हैं और इस माशरे के अजीम तरीन लोग हैं। उन्होंने फैसला किया कि ये जो मार्केटों के अंदर लोगों के साथ जुल्म सितम और जबर की दास्तान बावर्दी फोर्स पीरा, जिसमें 90% पुलिस अहलकार हैं, आपको पता है इस बात का, ये ट्रांसफर्स जो हुई हैं डेपुटेशन के ऊपर, ये पुलिस अहलकारों की हुई है और कांस्टेबल तक की बड़ी बड़ी ज़्यादा तनख्वाह है, क्योंकि जब आप डेपुटेशन पे किसी इदारे में जाते हैं तो आपके अलाउंसेस अलग और प्रोटोकॉल के साथ होते हैं, उसमें आपका लंच भी होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी लगने के बाद लाखों रुपए के ऊपर सैलरी चली जाती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का पहले ही अल्लाह ही हाफिज़ है, ओए उनसे तो बचना इसी तरह ही है जैसे शैतान से बचना है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इंसान जी नहीं सकता उनके सामने। मेरे जैसा एक जहादीदा क्राइम रिपोर्टर रात 6 बजे के बाद थाने में जाने से आज तक डरता है। आप सोचें कि वो क्या बलाएं होंगी, और जब वो लोगों को पकड़ते हैं और उनकी दिहाड़ियाँ तो बड़ी दूर की बात, उनके बच्चों की बीमारियों के भी पैसे खा जाते हैं। ये जंग लड़ रहे हैं उन अवामिल की, उनके पीछे कार फरमा अफराद की, और ये ही एक्सप्लेन उन्होंने करना था। जब दिन में 25 इंटरव्यू देंगी तो जाहिर है उसमें एक बंदे के पास कोई और बात होगी, दूसरे बंदे के पास कोई और बात होगी, तीसरा अपनी मर्जी का थंबनेल लगाएगा, और चौथा जो है वो अपनी कहानी के अंदर मोन्ताज के अंदर कुछ का कुछ बयान कर देगा। ये एडिटिंग भी क्या गजब चीज़ होती है, ये बंदे का तमाशा बना के रख देती है। दर हकीकत ये एक फला का काम था जिसको लेकर के निकली हैं, और अब क्या प्लान है, ये जंग आगे चलेगी? बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, जब पॉलिटिकल हैं आप लोग, ये मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिटिकल आप लोग हैं। पॉलिटिकल, आप मुझे बताएं कि आप पॉलिटिकल नहीं है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर अगर आपको डीपोलिटिसाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉलिटिकल आवाज जरूर उठती है। लेकिन अगर ये चीज कही जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। नहीं, नैरेटिव बिल्कुल बयानियां बना रहे हैं। ये बिल्कुल सियासी स्कोरिंग बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आप नहीं कर रहे हैं, नहीं ना करें ना। अभी आपके कहने पे क्यों ना करें? नहीं देखिए, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ। मैं हल्फन ये बात कर रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा। आप किस तरह से यकीन करेंगे? क्या मैं अपना जिस तरह से आपको यकीन होता है मैं आपके साथ, कहीं ना कहीं ये तसर मिलता है कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। मेरी बात है यासिर भाई, ये जो चीजें जातियात पे हमले और इस तरह से कहना कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो पॉइंट स्कोरिंग का खेल खेला जा रहा है ना, और जातियात पे हमले, एक मिनट, थर्ड क्लास नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है आपके हवाले से सोशल मीडिया पे कि आप हुकूमत से कोई बड़ी हेल्प चाहती हैं। जूते मारते हैं उस हेल्प के ऊपर। हराम है, हराम। मेरी तरफ करें, मेरी तरफ करेंगे, मेरी तरफ करें, मेरे ऊपर हराम है जी। हुकूमत की कोई भी हेल्प, या मैं कोई चाहती हूँ या मैंने इसलिए किया, या कोई भी इमदाद या कोई भी उनकी तरफ से कोई हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे पर 1 रुपया भी हराम है उनका। ठीक है, कन्फर्म हराम है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर हराम है मरियम साहिबा, मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है। मैं अब शुरू से ही मेहनत करती आई हूँ और मैं अब भी मेहनत ही करूंगी इंशाअल्लाह। मेरे ऊपर ये हराम है। अगर ये जो है वो इस चीज को नैरेटिव को बिल्ड अप किया जा रहा है कि ये सारी लड़ाई इसलिए है कि हुकूमत हमें एक बड़ी इमदाद दे और ऑफर करे और एक सेटअप बना कर दे, तो हम लानत भेजते हैं उस ऑफर के ऊपर, उस नैरेटिव फैलाने वालों के ऊपर और इस नैरेटिव को सपोर्ट करने वालों के ऊपर लानत है 100 दफा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग जातियात पे उतर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अभी भी जो है वो हमें कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कि आप ये क्या कर रही हैं। नजरियाती वोट है, नजरियाती वोट है। ये क्यों कर रहे हैं? क्या जुर्म है? यहाँ पर पीटीआई का पंजाब में अगर कोई वर्कर है तो वो होना जुर्म है, अगर पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर है
تو وہ ہونا جرم ہے, اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے آپ لوگ. کیوں؟ مسلم لیگ نون کا خریدا ہوا پنجاب, 4 سڑکوں کا نام لاہور اور پنجاب نہیں ہے, جا کے دیکھیں تو صحیح ستھرا پنجاب کے جو سارا پروگرام ہے اس میں کتنی کرپشن ہے, اس کے اوپر تو آپ لوگ بات نہیں کرتے. پیرا کے اوپر آپ بات نہیں کرتے, اپنے اداروں کے اوپر تو آپ بات نہیں کرنے دیتے, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. سارے جان کے سچے آپ لوگ ہیں. آپ کی بہت ساری باتیں جو ہیں ویلٹ ہیں, اور یہ اپنے آپ میں سوالات ہیں. میری طاہرہ سے ایک درخواست ہے. جی حکم کیجیے. ہم آواز بھی سنتے ہیں اکثر, یہ ترنم کے اندر حبیب جالب صاحب کا کلام پڑھا کرتی ہیں, اور ایک سما بن جاتا ہے, اور یقین جانیے کے اندر ایک گرماہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے, اور دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے حقوق کے لیے نکل پڑے. یہ جذبہ تو ہمیں حبیب جالب صاحب نے دیا تھا نا. جی بالکل. یہ انہی کے نیریٹو کے اوپر, یہ انہی کی سوچ کے اوپر, ایک بہت با کمال سوچ کے اوپر, شاید کسی ڈگری کا محتاج نہیں ہوتا, وہی دانی طور کے اوپر سے عطا ہوتی ہے. اصل کریٹر ہوتا ہی ہوا ہے. ان کی کوئی وہ نظم جو اس ماحول کو بھی گرما دے اور آپ کی آواز بھی من جائے, ذرا سنا دے. جالب صاحب نے ایک غزل لکھی فیض صاحب کے کہنے پر. جی جی. فیض صاحب نے کہا کہ جالب صاحب انقلابی نظمیں تو بہت ہو گئیں, اب آپ ایک غزل کہیں. تو جالب صاحب نے فیض صاحب کے کہنے پر ایک غزل لکھی, اور وہ غزل میں بھی انہوں نے کیا لکھا, عوام کی ہی بات کی. کہ وہ انہوں نے کیا کہا, میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہیں میری راہیں, میرے ارد گرد آنسو, میرے آس پاس آہیں. یہ جالب صاحب نے غزل کہی, اور وہ غزل میں بھی عوام کی ہی بات کہہ ڈالی. ان آنکھوں کا ذکر کر دیا جو ہر شخص کے اندر موجود ہیں. جی وہ سسکیاں, جی وہ ہچکیاں, جی ہیں جی, جی, وہ پلٹ کے, وہ رونا, وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کے گڑگڑانا, جی یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں. صبح بے نور کو اس کے کچھ اشعار, جی میں وہ بھی جی وہ بھی میں آپ سننے والوں کو, وہ سننے والوں کو, یہ لوگ مجھے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اجازت نہیں دی. جی جی بالکل, یہ میں انہی کے لیے بالکل لیگل طریقے سے نہیں آئی. میں نے اپلیکیشن 3 جون کو ان لوگوں کو دی ہے, اور ہمارے سی ایم جو ہیں جالب صاحب کی نظمیں پڑھ کے, اپنے سیاسی جلسوں کے, جالب صاحب کی انقلابی شاعری پڑھ کے وہ اپنا وزیر اعظم بن گئے ہیں. کہ کبھی انہوں نے مجھ سے میرے باپ کی ریٹن اجازت لی ہے؟ کبھی بھی نہیں لی. ڈی سی او کو میں نے اپلیکیشن ضرور دی ہے کہ مجھے محنت کرنے کے لیے کام, مجھے ریڈی لگانے ڈھابا لگانے دیا جائے. تو اس 98% بڑی خاموشی سے ہم نے یہ آپ کی پوری نظم جو ہے نا وہ سننی ہے. اس میں کوئی واہ کی آواز نہیں آئے گی, ہم نے صرف سننا ہے اور اس کے اثر میں اتر جانا. یہ ڈیڈیکیٹ کی آپ نے ان لوگوں کو جن کے لیے جنگ لڑی ہے, جن کے لیے جالب صاحب نے یہ جنگ لڑی ہے, اور میں ان کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں انشاءاللہ, الحمدللہ لڑتی رہوں گی. جی ارشاد. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات کو, جہل کی رات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں
کو لے کر چلے. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے کھلنے سسکتی بے بس عوام تم کبھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو بھگتتی ہے. صبح نکلتی ہے اپنا دانہ دمکا چننے کے لیے, لٹ کے گھر آ جاتی ہے. سرکاری فرشتے نوچ کھانے کے جذبے سے اپنی ڈیوٹی کے اوپر تو نکلتے ہیں, ان کو تحفظ فراہم نہیں کرتے, چابکوں سے ان کو مارتے ہیں, اور لوگ ان کے آگے رقص زنجیر پہن کر کیا کرتے ہیں. روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, ان کی آواز کوئی نہیں بنتا. جو لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا باعث بنے اور انہوں نے لوگوں کے اندر ولولہ اور جذبہ پیدا کیا, آج ان کی نسلیں ایک نئے جذبے کے ساتھ اسی عوام کی آواز اٹھانے کے لیے آج باہر نکل کے آ چکی ہے. کیا آپ بھی اپنے حقوق کی ترجمانی یا ان کی بقا کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے؟ اگر اٹھائیں گے تو کمنٹ سیکشن میں 1-2 لفظوں کی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.